Hello everyone, online class 7th, subject science, chapter 15, water. Water means पानी. Importance of water, जल का महत्व. Water is one of the natural resources that we have on earth. It is the most necessary substance for survival. About 70% of the body mass of animal is due to the presence of water. About three-fourths of the Earth's surface is covered with water, but only 1% water is available for use by humans and other organisms. Water is one of the most vital natural resources for life to sustain on the earth. The availability of water has always played an important role in determining not only where people can live but also their quality of life. जल प्राकृतिक संसाधनों में से एक है जो हमारे पास पृथ्वी पर है। यह अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ है। जानवरों के शरीर के तापमान का लगभग 70% पानी की उपस्थिति के कारण है। पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन केवल 1% पानी ही मनुष्य और अन्य जीवों के उपयोग के लिए उपलब्ध है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। पानी की उपलब्धता ने हमेशा यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Water is one of the most vital natural resources for life to sustain on the earth. The availability of water has always played an important role in determining not only where people can live but also their quality of life. All the living things on earth depend on water. A person can live without food for several weeks, but without water, one cannot live for more than a few days. Just like human beings, plants and animals also need water for their survival and growth. Water acts as a medium in plants and animals for performing various life processes such as digestion of food, absorption of nutrition nutrient by the body, distribution of various nutrients to different part of the body and removal of wastage from the body. कि न केवल लोग जहाँ रह सकते हैं बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता भी है। पृथ्वी पर सभी जीवित चीजें पानी पर निर्भर है। एक व्यक्ति कई हफ्तों तक भोजन के बिना तो रह सकता है, लेकिन पानी के बिना कुछ दिनों तक नहीं रह सकता है। मनुष्य की तरह ही पौधे और जानवरों को भी अपने अस्तित्व और विकास के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी के विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं के करने के लिए पौधों और जानवरों में एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, जैसे भोजन का पाचन, शरीर द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण, विभिन्न का वितरण, शरीर के विभिन्न भागों के पोषक तत्वों और शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को निकालना होता है। More than 70% of the human body is made up of water. On an average, the human body requires 2-3 more than 2-3 liters of water each day for proper functioning of the body. We intake water through food and drinks and lose it in the form of urine and sweat. Water also helps in regulating the body temperature. मानव शरीर का 70% से भी अधिक पानी से बना है। शरीर के समुचित कार्य के लिए मानव शरीर को औसतन प्रतिदिन 2-3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। हम भोजन और पेय के माध्यम से पानी का सेवन करते हैं और इसे मूत्र और पसीने के रूप में खो देते हैं। पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी हमारी मदद करता है।
In plants, water is essential for photosynthesis and seed dispersal. Water dissolves nutrition in the soil. These are then absorbed by the plant through their roots along with the water. It acts as a medium for transporting nutrition from the soil and food from the leaves to different parts of the plant. पौधों में प्रकाश संश्लेषण और बीज फैलाव के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी मिट्टी में पोषक तत्वों को घोलता है, फिर पानी के साथ पौधों को उनकी जड़ों के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। यह मिट्टी और भोजन से पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों को परिवहन करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। पानी वाटर प्रोवाइड्स ए नेचुरल हैबिटेट to a large number of marine plant and animal living to its ocean, rivers, lakes, and ponds. It provides thus the dissolved nutrition and oxygen for their survival. पानी बड़ी संख्या में समुद्री पौधों और समुद्री नदियों, झीलों और तालाबों में रहने वाले जानवरों को प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। यह उनके अस्तित्व के लिए भंग पोषक तत्वों और ऑक्सीजन प्रदान करता है। Some other uses of water are as follow. पानी के कुछ अन्य उपयोग इस प्रकार हैं। फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर। इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस मेडिसिन एंड केमिकल्स। इसका उपयोग विभिन्न दवाओं और रसायनों के निर्माण में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस सच एज कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड गार्डनिंग। इसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि खाना पकाना, धुलाई करना, बागवानी करना आदि में। इट इज स्टोर्ड इन डैम फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका निर्माण बांधों में किया जाता है बिजली उत्पन्न करने के लिए। इट इज यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसका उपयोग परिवहन के साधनों में प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। इसका उपयोग आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। इट इज नीडेड फॉर वेरियस स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग, सर्फिंग एंड स्क्यूबा डाइविंग। यह तैराकी, सर्फिंग और स्कूबा डाइविंग जैसे विभिन्न खेलों में इसका यूज किया जाता है। फैक्ट स्ट्रिप 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। फॉर्म्स ऑफ वाटर। पानी का फॉर्म्स। इन नेचर वाटर एक्सिस्ट्स इन 3 फॉर्म्स: लिक्विड वाटर, सॉलिड आइस एंड गैस वाटर वेपर। प्राकृतिक जल 3 रूपों में बटा हुआ है। तरल जो होता है वो पानी के से होता है, ठोस सॉइल, ठोस गैस में, और गैस जल वाष्प में मौजूद होते हैं। सॉलिड फॉर्म। इन सॉलिड फॉर्म वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन द फॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर्स, स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड एज आइस कैप्स। ठोस रूप में ग्लेशियर, बर्फ से ढके पहाड़ों और आइस कैप के रूप में पृथ्वी पर पानी मौजूद होता है। जो तरल गठन तरल रूप से पानी महासागरों और झीलों में मौजूद होता है, नदियों में। लिक्विड फॉर्म। इन लिक्विड फॉर्म वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियन, लेक एंड रिवर्स। अब जो तरल होता है लिक्विड, वह पानी में, समुद्र, झील, नदी में एक तरल पानी पे मौजूद होता है। गैसेस फॉर्म। गैसीय रूप में। इन गैसेस फॉर्म वाटर इज प्रेजेंट इन द एयर एज वाटर वेपर। गैसीय रूप में जल वायु में जलवाष्प के रूप में मौजूद होता है। ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल। इट कैन बी converted from one form to another form and then brought back to the original form by changing the temperature. फिर तापमान को बदलकर मूल रूप में वापस। जो पानी होता है, पानी के सभी 3 रूप विनिमय हैं, अर्थात
इसे एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और फिर तापमान को बदलकर मूल रूप में वापस लाया गया। Ice starts melting at 0 Celsius. This is called the melting point of ice. However, if water is cooled, it changes to ice at the some temperatures at 0 Celsius. Therefore, the freezing point of water is also 0 Celsius. अब जो बर्फ होता है, बर्फ 0 सेल्सियस पर पिघलने लगती है। इसे बर्फ का गलनांक कहा जाता है। हालांकि अगर पानी को ठंडा किया जाता है तो यह उसी तापमान पर बर्फ में बदल जाता है, अर्थात 0 सेल्सियस पर। इसलिए पानी का हिमांक भी 0 सेल्सियस है। वाटर चेंज टू वाटर वेपर एट ऑल टेम्परेचर्स। दिस इज कॉल्ड evaporation. That is why precipitation varies up to room temperatures and wet clothes dry up even in set. However, the change occurs faster if the water is heated. सभी तापमानों पर जल वाष्प में परिवर्तन होता है। इसे कैलोरेशन कहा जाता है। इसे वेपोरेशन मतलब भाप कहा जाता है। यही कारण है कि परपंथी कमरे के तापमान पर सूख जाती है और गीले कपड़े छाया में भी सूख जाते हैं। हालांकि परिवर्तन तेजी से होता है, पानी गर्म होता है। Water starts boiling at 100 Celsius. This is now as the boiling point of water. At this temperatures, water changes rapidly to steam. When steam is cooled, water is formed. This is now as the process of condensation. अगर पानी 100 सेल्सियस पर उबलने लगता है तो इसे पानी का क्वथनांक के रूप में जाना जाता है। इस तापमान पर पानी तेजी से भाप में बदलता है और भाप को ठंडा किया जाता है तो पानी बनता है। इसी की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है और इसे संघनन कहते हैं। वाटर साइकिल, जल चक्र। द वाटर साइकिल इज अ continuous cycles in which water on the earth's surface evaporates due to the heat of the sun. Plants also give off water vapor through transpiration. The evaporated water travels in the air and condenses to millions of tiny droplets that forms clouds in the sky. This is called condensation. The million of tiny droplets collide with one another to form larger droplets which fall down on earth is the form of rain, snow or hail due to precipitation and then evaporates again. This process repeats again and it is never ending cycle. This cycle is also known as the hydrological cycle. The water cycle ensures the availability of water for all living organisms and regulates weather pattern on earth. जल चक्र एक निरंतर चक्र है जिसमें पृथ्वी की सतह पर पानी होता है, सूर्य की गर्मी का वाष्पीकरण होता है, पौधे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल वाष्प को भी छोड़ देते हैं। वाष्पित पानी हवा में यात्रा करता है और आकाश में बादल बनने वाली लाखों छोटी बूंदों के लिए संघनन करता है। इसे संप्रेक्षण कहा जाता है। लाखों छोटी बूंदें एक दूसरे से टकराकर बड़ी बूंदों बनती हैं जो वर्षा के कारण पृथ्वी पर गिरती हैं, जो बारिश के कारण बर्फ या ओलों के रूप में गिर जाती है और फिर से वाष्पित हो जाती है। यह प्रोसेस बार बार होती है और यह कभी खत्म नहीं होने वाला चक्र है। इस चक्र को हाइड्रोलॉजिकल चक्र के रूप में भी जाना जाता है। जल चक्र सभी जीवित जीवों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है और पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करता है। थैंक यू।